क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and we have a big update that Shikhar Dhawan is likely to lead the Indian team again. नहीं, एशिया कप और वर्ल्ड कप में नहीं, लेकिन एशियन गेम्स जो सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं चाइना में, उसमें वो इंडियन टीम को शायद लीड कर सकते हैं. एंड टू टॉक मोर अबाउट इट आई हैव विद मी के श्रीनिवास राव, नेटवर्क 18 स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट जेमी ऑल्टर एंड फॉर्मर क्रिकेटर चैतन्य नंदा. वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट गाइज. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, श्रीनी, एशियन गेम्स की अगर कैप्टेंसी मिल रही है तो डज दैट मीन कि शिखर धवन के लिए रोड का एंड आ चुका है? बिकॉज द शेड्यूलिंग ऑफ द एशियन गेम्स is coinciding with the Asia Cup and World Cup that will be held in India. Yeah, so for Shikhar, it's obviously, kind of something to, at the fag end of his career, something to look forward to. He can go out on a high. I see this development in two separate parts. First half is Shikhar. अगर उसको opportunity मिल रही है to end his career on a high, why not? I mean, it's a great opportunity. I think he's had a fabulous white ball career and right time to, if BCCI is looking at it that way. The second part of the story is I don't agree with the idea of India participating in the Asian Games. That's a separate topic. Jimmy, your thought on this? Yeah, look, I think someone in the system, because देखो BCCI बहुत साल तक they didn't send a team. I think 2010 was the last time, and I think Shini will probably have the quote embedded in his brain. But I think it was something along the lines of कुछ scheduling conflict या वो window नहीं है. अब अचानक वो window कहाँ से आ गया? I'm not at any experience to say. But अच्छी बात ये है कि अगर आप देखेंगे कि बाकी जो भी competition होगी, they're all going to also have their first choice teams at the World Cup, right? तो उस लिहाज से keeping in mind India's fantastic bench strength, the IPL, domestic, this is India's best chance to go there and win some kind of not a trophy, but a medal, right? So maybe something in the BCCI, someone said, yeah, chalo, at least medal to aa jaye, kind of say, yes, I can get to an extent, shayad ye Shikhar Dhawan ka farewell ignored ho, I don't know about that. I think the bigger picture is they realize, yeah, competition wahan pe acha nahi hoga. If we can get something, because right now Indian cricket needs something to feel good about, right? And I know last time we were here, I sort of half jokingly said that yeah, Shikhar Dhawan had a very easy job last year, leading B teams against Bangladesh, Zimbabwe, New Zealand. But अब अगर वाकई में वो बनते हैं captain, this is not a light matter. His job is to lead that team, to perhaps identify future leaders. लेकिन अगर वहां गए शिखर धवन, and most likely he will go, अब ट्रॉफी जीतना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो इंडियन टीम किसी बी या थर्ड रेट टीम से हार के आई, then things will get very very ugly. So if it's शिखर धवन, if it's जो भी हो, उस इंसान को पूरा 110% से टीम को लीड करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड आई थिंक इट विल हैपन बिकॉज़ लाइक आई सेड आवर बेंच स्ट्रेंथ इज सो गुड. यशस्वी जायसवाल वनडे स्क्वाड में नहीं होंगे, हो सके वो जाए, मे बी नीतीश राणा गोस, मे बी कृणाल पांड्या गोस. आई थिंक इट्स गोना बी शिखर धवन प्लस 2-3 of those senior players followed by 9-10 youngsters. बढ़िया मौका है ये एक अगेन नॉट ट्रॉफी बट एक मेडल ले आने का. वेल, बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की जो मीटिंग होगी 7th of July, उसमें ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा. लेकिन चैतन्य, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शिखर धवन, व्हाट सरप्राइजेस मी इज either you talk about him as the B string captain or you just don't talk about him. I mean, how horrible and how unfair this is to someone who has done exceptionally well in ICC tournaments, and considering the kind of injury concerns you still have in your side. See what happens. अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इट्स अ फॉल्ट ऑफ द सिलेक्टर्स हु कॉल्ड हिम ऑफ लॉन्ग टाइम बैक कि अभी हमें शिखर के से मूव करना होगा एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर कंटेंशंस एंड फ्यूचर प्लेयर्स. सो आई थिंक वहाँ पे मतलब शिखर के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि बिकॉज शिखर को तब तक पता नहीं था कि उसका फ्यूचर किस तरफ जाने वाला है. तो बट अगर आप हम बात करते हैं एशिया गेम्स के लिए जाने के लिए, तो ऑब्वियसली एज ए बीसीसीआई और एज ए सिलेक्टर्स आई ऑलवेज वांटेड टू फील्ड समवन हु कैन विन द ट्रॉफी. हमें ऐसी टीम भेजनी चाहिए जो मेडल को जीते. और अगर आपके पास शिखर धवन वहां पे अवेलेबल नहीं है आपकी मेन टीम में, तो ही विल बी द बेस्ट बेट
who can lead the team because he has experience of 167 ODIs. He has performed everywhere in all the T20 formats, in IPL, everywhere with the white ball. He has done very well. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिखर धवन उनके साथ अजिंक्य रहाणे को आप भेज सकते हैं, who is doing well in a form. Then जैसे जेमी ने बोला कृणाल पांड्या हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल हो सकता है. So you can make a mixture of seniors, you know, who have experience and the youth whom you are looking for the future. और बहुत अच्छी बात ये होने वाली है कि वहां पर बहुत ज्यादा टफ टीम्स नहीं आने वाले हैं, सब कुछ सेकंड टीम्स होंगी, बी टीम्स होंगी. So when you talk about having somebody's B team and you are having a Shikhar Dhawan, Ajinkya Rahane kind of people in your team who can, you know, guide the youngsters very well and they take the responsibility as well because they know how to take the pressure because शिखर ने आईपीएल में कैप्टनसी करी है. शिखर को ही अंडरस्टैंड कि भाई कैसे इसको प्रेशर को लेना है. Ajinkya Rahane back in form, he's coming from the place where a lot of people have wrote him off कि अब वो उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है. So I think these kind of people are coming back and going to Asia Cup. It's good for BCCI. And whenever you, as a selector or as a, you know, as a organization, when you want to send some of your team, you want that team to do well, whatever tournament it is. You have to win. You have to make a team with the thought that ये team वहाँ पे जाके ट्रॉफी या मेडल जो भी अवेलेबल है उसको जीत के आए. But Shini, that is what I'm talking about, right? Shini, I would come to you for this. आप अगर आप ट्रॉफी की तरफ देख रहे हो, आप एक मेडल की तरफ देख रहे हो, अगर हम टीम भेजते हैं तो आप शिखर धवन को बुला लेते हैं, लेकिन आप जो मेन इवेंट है, जो मेजर 2 इवेंट्स हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, आप उनमें उसको कंसिडर भी नहीं करते. तो डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर? ठीक है, सिलेक्टर्स का जो भी अब भी तो सिलेक्टर्स ही एक पार्ट प्ले करेंगे ना, अगर ये टीम के कैप्टन शिखर धवन बन के जाते हैं. नहीं देखो, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे शिखर इज पास्ट हिज प्राइम. उसकी जगह नहीं बनती है. आई मीन जब बन रही थी उसकी जगह तब तुमने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया. You know, and he did consistently well in the 2020 edition of IPL, 2021 edition of IPL. He's done consistently well. I think he was the top scorer in 2020 if I'm not mistaken, right? So जब था वो opportunity तब नहीं दिया. Today he's clearly past that prime. So today you want to like kind of, you know, I'm from whatever you're saying, like this जो आपका जो headline था आज के show का, you know, based on that, you know, it's a step back. I don't want to jump the gun on anything until July 7th. मैं अभी भी यही कह रहा हूँ. BCCI अगर इंडियन टीम को एशियन गेम्स में भेज रही है, मैं तो पहली बात उसी से कन्विंस नहीं हूँ. तो आप शिखर धवन को भेजिए या किसी को भी भेजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I think it is a wrong move on behalf of BCCI to send a team to Asia Cup or send cricket, agree to cricket in the Asia Cup. Jimmy, you know, recent that will require another show. Yeah, exactly. Please call me also. जो अगर ठीक है, अगर हम recent forms की बात करें तो शिखर hasn't really done any much wrong in the IPL, right? 2023 का अगर मैं उनका मैचेस देखूं, he was injured in between. 11 मैचेस में 373 रन, 99 नॉट आउट का बेस्ट, 41 का एवरेज. I mean, saying that he is, मतलब ठीक है, प्राइम जरूर उन्होंने पास कर लिया है, बट इफ यू कंसिडर दैट करंट फॉर्म, आपने अजिंक्य रहाणे को भी जब टेस्ट में डाला तो आपने करंट फॉर्म पे डाला, आपने आईपीएल की फॉर्म पे नहीं डाला. हम सब जो क्रिकेट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है उसने अजिंक्य रहाणे के लिए यही बैक करा कि आपने रणजी ट्रॉफी में रन करें, किसी के भी अगेंस्ट करें, आपके 200 हैं, 100 हैं, इसीलिए आप वापस WTC फाइनली टीम में आए. तो व्हाई नॉट हिम? इन व्हिच फॉर्मेट? आपका जो नियरेस्ट वाइड बॉल फॉर्मेट है, ठीक है, आपका जो नियरेस्ट वाइड बॉल फॉर्मेट है उसमें तो इन्होंने रन कर दिए ना. And no, but you're asking me why he's not playing T20Is for India or ODIs? Any white ball format अभी आप नहीं खिला रहे, लेकिन आप सडनली उनको एशियन गेम्स की टीम का कैप्टन बना देते हैं. That is what I'm asking. तो आप कंसीडर मेन टीम में क्यों नहीं करते? Because like Srini said, he's past his prime, right? Last year, Shikhar Dhawan's strike rate in one days was 72. यार ये 2022 था, ये 1998 नहीं है ना. 72 के स्ट्राइक रेट से आप जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ आप खेल रहे हो तो आप क्लियरली पास्ट योर प्राइम हो. It was a clear decision to, yes, he was leading B teams, पर उनके performances, आप runs मत देखिए. If your strike rate against Pappu teams is 72, तो I understand why he's not playing anymore, right? So that is very obvious, and he'll be 38 when the World Cup starts. You know, बहुत fit है, मजेदार है. I mean, Chaitanya's played with him. He's far more qualified to talk about him. But yeah, 38-year-old traditionally does not fit
डेफिनेटली इनटू अ T20I टीम, और आपको T20 टीम में आपको यूथ की जरूरत है. सो आई गेट व्हाई ही इज नॉट प्लेड अ T20I फॉर 2+ years नाउ. और वनडे में मैंने लास्ट टाइम कहा था, जब आपके पास ऑलरेडी इंजरी प्रोन 35 रोहित शर्मा है, विराट कोहली, he is the fittest player. I still think he can play one more one-day World Cup 4 years on the line. लेकिन जब उनका फॉर्म खराब था, तो they needed to try something. Now, coming to your question about अचानक why him for the Asian Games, that's a strange one. Probably because last year the captaincy record was very good, right? तो अगर आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो यंगस्टर्स को ग्रूम करे, जो अजिंक्य रहाणे टाइप को उनको हैंडल करे, तो मेरे हिसाब से शिखर धवन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है. बट लेट्स नॉट कंफ्यूज शिखर धवन द बैट्समैन विद शिखर धवन द कैप्टन. दैट सेड, आई फाउंड अ लॉट ऑफ हिज कैप्टनसी डिसीजंस इन दिस IPL वेरी पुअर, तो दिस इज व्हाई आल्सो हमारे स्क्रीन पे भी आया था 3 T20, 1 जीत 2 हार, राइट? तो कहीं ना कहीं ही मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन, बट आई थिंक इट्स अ केस ऑफ, अब देखिए जुलाई 7 की आपने जिक्र किया था, हो सके टीम ना जाए, बट प्रॉब्ली लाइक वी डिस्कस, इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर एन इंडियन टीम टू विन समथिंग. और आजकल विन की जो एक भूख है ना, आई डोंट थिंक फैंस आर एंग्री, इट्स जस्ट मोर लाइक दे आर फ्रस्ट्रेटेड यार, कि ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं है. तो मे बी इट्स लाइक यार गब्बर है, पाजी जाओ, आपका बेस्ट चांस है. एंड लेट्स होप, लाइक चैतन्य सेड, देयर विल बी वेरी पुअर क्वालिटी टीम्स. अगर एक ट्रॉफी कहीं से आ जाए ना, एंड एशियन गेम्स इज बोरिंग क्रिकेट, इट्स वेरी टफ. इट्स नॉट कॉमनवेल्थ गेम तो चाइना नहीं है ना, ये लोग नहीं आते हैं. एशियन गेम्स बाकी फील्ड में बहुत टफ है. तो अगर हल्की फुल्की फॉर्मेट में कुछ आ जाए, आई एम ऑल फॉर इट यार. Yes, Srini, you were saying something. No, like the way JB was saying, यार trophy आ जाए कहीं से एक trophy, so it's just very. बात सही है यार, एक तो चाहिए कैसे यार. तो एक तो अंडर 19 वर्ल्ड कप आई, तो ट्रॉफी आ तो गई. एक ट्रॉफी तो कहीं से आई है. हाँ. ओके, चलो ना, जोक्स अपार्ट, कमिंग डाउन टू द अदर टीम्स, व्हाट विल द अदर टीम्स डू? किस तरीके की टीम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ दे डिसाइड टू गो फॉर द टूर्नामेंट? योर माइक इज ऑन म्यूट. You're mute. Chaitanya, you're mute. Every team will be busy because वहाँ पे अभी यहाँ पर वर्ल्ड कप भी होगा, एशिया कप होगा, सब कुछ होने वाला है. तो सारी टीम्स जो है ना बिजी होने वाली हैं इसके अंदर. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑल दैट बिजी स्केड्यूल, और अगर थोड़ा सा गैप के बीच में कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे गैप आ जाता है और वो अपने भेजे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ी टीम अपने मेन प्लेयर्स भेजेगी, बिकॉज दे डोंट वांट देम टू गेट हर्ट, get injured or get tired before the coming bigger tournaments. तो मुझे लगता है वहां पर इंडिया के पास बेटर अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं. बाकी जो कंट्रीज हैं उनके पास वो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. अगर हो सकता है तो मेरे को लगता है 1-2 आसपास की जो टीम है उनके पास बेनिफिट हो सकता है, बट फिर भी इंडिया को कोई कंपेयर नहीं कर सकता इसके अंदर. और आप जैसे बार बार आप यही क्वेश्चन करते हैं कि शिखर धवन व्हाई नॉट इन दिस T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट. देखिए जैसे जेमी ने बोला ना, आपको बीसीसीआई के साथ क्या हुआ है कि बीसीसीआई को अपनी टीम को नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना था और उसके बाद आने वाले T20 के लिए तैयार करना था. तो ऐसे सिलेक्टर दे थॉट कि यार अब हमें मूव ऑन करना होगा, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू स्टार्ट मूविंग. और आप जब मूव करते हैं तो आप एक एक करके मूव करते हैं, आप एक साथ अपने 5-6 सीनियर्स को नहीं हटा देते. तो जब सीनियर्स की लाइन खड़ी हुई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, अश्विन, जडेजा, ऐसे जब नाम इकट्ठे होने शुरू हुए, तो उसमें उन्होंने देखा कि अगर हम अभी शिखर को रिमूव करते हैं तो हमारी टीम का जो जिंक्स है, जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, जो हमारी प्लेइंग 11 की स्ट्रेंथ है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो उस नंबर पे आके उतने रन बना सकते हैं और बेटर वे में बना सकते हैं और ग्रूम भी हो सकते हैं. तो जब ऐसी ऑप्शंस आती हैं तो सिलेक्टर्स को ये डिफिकल्ट कॉल होता है, बट दे हैव टू टेक दिस कॉल. और अब as a BCCI, I'll just cut you down here. I mean, is it not confusing और मतलब थोड़ा ये अपने हिसाब से चलने वाली बात नहीं है कि यार वैसे तो आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपको टूर्नामेंट्स के लिए टीम बनानी है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आई, जब आपको एक पोस्ट कोविड एक नया ट्रेडिशन आया कि हम 2 टूर्नामेंट्स एक साथ खेल सकते हैं, तो आपने एक प्लेयर को उठा के यार आप कैप्टेंसी कर लो, आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आप फिर ग्रूम, आप 2 साल देखिए, पोस्ट कोविड भी ये शुरू हुआ ना जब श्रीलंका ये कैप्टेंसी वगैरह करने गए, तो उस टाइम भी ये हुआ ना कि एक टीम एक तरफ खेल रही थी, दूसरी टीम दूसरी तरफ खेल रही थी दुनिया की.
तो आप उस समय किसी यंगस्टर को कैप्टन बना के भेज देते। हाँ, वही मैं आपको बता रहा था। तो आपने इनको क्यों भेजा? एज ए बीसीसीआई सोचूंगा, एज ए बीसीसीआई और एज ए सिलेक्टर्स अगर आई विल थिंक, मैं यही सोचूंगा कि यार देखो, सबसे पहली बात तो है कि इंडिया इज लकी एनफ टू हैव दैट कुशन कि वहां पे वो 2 टीम्स के साथ खेल सकते हैं। ऐसी हर कंट्री के पास कुशन नहीं है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी बेंच स्ट्रेंथ होने के बाद भी हम ट्रॉफीज को नहीं जीत पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमें रेगुलर जीतनी चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतना बड़ा ग्रुप ऑफ बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ट्रॉफीज, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम ट्रॉफीज लगातार जीत रहे हैं और बीच में एक आधी ट्रॉफी मिस हो जाए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वो नहीं कर पा रहे। मेन गोल जो है उसको नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन एज ए बीसीसीआई और एज ए सिलेक्टर मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो जब मैं एक ए टीम फील करता हूं तो मैं ए टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स नहीं मैं मिक्स नहीं करना चाहूंगा दोनों टीम्स को, कि मैं इसमें थोड़े से प्लेयर अच्छे डाल दूं, थोड़े से प्लेयर इसमें अच्छे डाल दूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ए टीम है ये टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलने जा रही है, और जो बी टीम है वो हल्की टीम्स के अगेंस्ट खेलने जा रही है। तो बी टीम में मैं चाहूंगा, जैसे इंडिया ए की टीम बनती है, तो इंडिया ए की टीम में अगर आप देखोगे तो इंडिया की टीम के अंदर आप सीनियर्स को डालते हैं जो अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर देते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं वो वहां पे फील ले लेते हैं कि किस तरीके की इंटरनेशनल क्रिकेट होने वाली है। इसलिए इंडिया ए, अंडर 19 इंडिया, ये सारे टूर्स बनाए गए कि प्लेयर स्टार्ट गेटिंग रेडी फ्रॉम द इन द प्रोसेस, वो प्रोसेस में रेडी होता हुआ है। और ये पहले करता था, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा करता था, उसको देख के हमने ये सिस्टम शुरू किया, जिससे हमने प्रोसेस बनाया जहां से प्लेयर फिल्टर होते 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 इंडियन टीम पे पहुंचता है और वो वहां पे रेडी होता है। तो शिखर धवन, जैसे मैंने बोला कि 5-6 सीनियर्स में से कुछ प्लेयर्स को उनको रिमूव करना था, तो वहां पे शिखर को उन्होंने रिमूव किया, और शिखर को उन्होंने इस तरह से देखा कि वो जो टीम बी है उसको वो ग्रूम कर सकता है, उसके अंदर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, क्योंकि जब आप वहां से निकाल रहे हो तो आपको एक प्लेयर सीनियर मिल गया है जिसको आप टीम बी में डाल सकते हैं। और अब जब हम फील्ड कर रहे हैं एशिया कप में टीम को, तो मुझे लगता है कि आपके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको शिखर के पास जाना पड़ रहा है। अगर उनके पास से बेटर ऑप्शन कुछ और होता तो शायद हो सकता है कि हम वहां पे भी शिखर को नहीं देखते। just to pick up again, we know कि July 7 तक there's no point talking too much, speculating, हो सके टीम ना जाए। अगर टीम जाती है तो this could also be some kind of a stepping stone to next year's T20I World Cup, right? Because देखिए सारे जो मेन प्लेयर्स हैं जो दोनों फॉर्मेट्स या दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स खेलते हैं वो तो मोटे मोटे वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, राइट? But imagine a Rinku Singh, imagine a Avesh Khan, imagine a Yashasvi Jaiswal, these kind of players, Tilak Verma, Sai Sudarshan, Jitesh, इन लोग को, because this time around ICC said भाई एशियन गेम्स T20I स्टेटस के गेम्स हैं, ये कोई वो नहीं है जैसे कॉमनवेल्थ में हुआ था 98। दिस मैटर्स, दिस इज ऑफिशियल T20Is, राइट? सो द इक्वेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। अब जो भी टीम जाएगी प्लेयर्स के अंदर, यार इफ यू आर अनकैप्ड राइट नाउ, इफ यू आर जायसवाल, भैया देयर इज नो गारंटी यू आर गोइंग टू प्ले इन वेस्ट इंडीज, मे बी दैट चांस कम्स इन एशियन गेम्स, राइट? So I hope that this is seen, if the team does go, I hope it's seen as trying to start that reset which the T20I team desperately needs. हो सके शिखर धवन के अंडर ये हो जाए, because we need this kind of a team going to the West Indies, और जहां भी होगा वेन्यू नेक्स्ट जून जुलाई, ये मिक्स जो है ना यूथ का एक्सपीरियंस का, I think this is going to start here. It'll begin in the West Indies as well, but जो uncapped players हैं, रिंकू, these kind of players, इनके लिए बहुत बड़ा मौका है, because the team, let's face it, जो भी टीम जाएगी वो IPL सक्सेस से ही जाएगी वो। Yeah. Thinking what I was Chaitanya was, what will other teams do? How what kind of team, kind of will build if you take the Asian Games? So I lost you. In between. It broke up. The voice was breaking. Hello. Can you repeat the question? Am I audible? No. There's some static, Soumya. Yeah. I think it's your end. There's some static. Srini, can you hear me? Yeah, I can. I think Soumya was saying, what will the other teams, something about other teams, how will they approach it? I think that's what he was asking. Again, I mean, I think one of you all pointed out, and that's very true, that which is the other country that you can immediately think of which has the kind of bench strength that India has at its disposal, right? I remember when we were in England in 2021, and that
the so-called B team had gone to Sri Lanka to play the series under Rahul Dravid. I remember people in BCCI were actually making an effort to explain that please don't call this a B team. This is as good as the Indian team, because this is just an extension of players who couldn't go to England, but Yep. probably teams were as good as that. And I remember the kind of narrative and the commentary that was there around the team that went to Sri Lanka was more on the lines of how probably from here on you will see two Indian teams probably simultaneously playing at all times, because that's the kind of cricket that's going on, and that's the kind of demand that's there. So again, Asia, this so-called team being prepared for the Asiad, I think needs to be seen from the same narrative. That whoever is available makes for the tournament that is going to be called for. But that said, I intrinsically have a problem with the mindset where a 35. How old is Shikhar, by the way? I don't know his exact age. He's nearing 38. So I'm intrinsically against the idea of sending a 38-year-old as a captain. Forget sending him. What exactly are you trying? I think we need to stop. If this is as what this program began, on the lines of which this program began, where we said that is this to make him feel good at the fag end of his career and all that, then I think we need to stop approaching things with that kind of a mindset. I would rather have a youngster who shows me potential as a future leader, captain. I would rather have someone like that going, with a young team, and not the other way around. I across all levels, I think captaincy is either something that you need to start identifying with, and if I want to test someone as a young captain, if I want to test someone, what better space than this? Mm. Yeah, And Chetan. considering, and also sorry to add here, and considering the fact that the way things have gone from an India A perspective, where do we go? We don't travel. As an India A team, we don't travel anymore. I remember the days in 2004 and 5 when Sandeep Patil was the chief coach, national coach of Kenya, and how he was called back. And India, BCCI at that time, Mr. Jagmohan Dalmia was still very much in control of the BCCI at that time. How there was great emphasis on seeing that India plays as many A tours as possible, and it helped immensely. It over the years, I remember 6, 7, 8, 9 players benefited massively. The ranks in the Indian team got filled, wherever there was space got filled because of performances that came by way of India A setups. I remember, I don't know, I mean, sorry to prolong this further, but I just to make my point further here. How many of us remember this batsman from Maharashtra, Dheeraj Jadhav? Back to back, he had 1100, 1200 runs in the Ranji Trophy, and yet he couldn't make it to the Indian team because, again, truth be told, like there was no space to kind of find a place there, right? And how India A used to be that doorstep which always kept him knocking on the door, like kind of it was just around the corner kind of a thing. So India A, the concept was immensely helpful, and since it's not there, I mean, you look at these tournaments as possibly a kind of replacement. Yeah, sorry. Yeah, Chetan. Is BCCI so gutsy, या selectors इतने gutsy हैं कि because they can take a chance in sending a new youngster as a captain and go and play in Asia Cup, और अगर वो हार जाते हैं तो it will be it will like उनकी thought सबसे पहले negative thought ये होगी अगर हम हार गए तो क्या होगा. तो I think यार हमारा तो वो माइंडसेट ही वही है हमारा, नॉट जस्ट BCCI, यहाँ तो हमारी बॉलीवुड जो मूवी बनाती है वहां पे भी उनका पहला माइंडसेट ये होता है कि पिक्चर नहीं चली तो क्या करेंगे. आप ये बना के आप ऐसा आप कोई भी काम कर लो, मतलब आप परीक्षा दे दो एग्जाम की स्कूल में, अगर आप यही सोच के जा रहे हो एग्जाम लिखने के लिए यार फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो कभी पास ही नहीं होगे जिंदगी में यार. आपको रिस्क लेना है, फेल हो जाएगा तब देखेंगे, बट आप रिस्क तो लो. आप एक यंगस्टर में आप बिलीव करते हो तो अपॉर्चुनिटी दो. सी हाउ teams around the world have benefited if it worked by investing in a young kind of young pair of hands. I mean, I agree, I totally agree, but मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि ये तब पॉसिबल था जब BCCI या हमारे सिलेक्टर्स ने बहुत सारी ट्रॉफीज जीत ली होती, so they would have taken a chance कि ठीक है एक ट्रॉफी एक मेडल नहीं भी आया तो कोई बात नहीं. प्रॉब्लम क्या है, लाइन से हम लोग हार रहे हैं ट्रॉफीज को. one thing है, पे फेस सेविंग के लिए ये मेडल लेके आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चांस लेंगे किसी यंगस्टर को भेज दें. ये एक सीनियर को भेजेंगे
और साथ में जरूर भेजेंगे, और इसलिए भेजेंगे कि कल को अगर कोई बात होती है तो फेस सेविंग के लिए भाई शिखर धवन है, उन्होंने अच्छा नहीं किया या जैसे भी हुआ सीरियस परफॉर्म नहीं चेतन, कर वन पाए। थिंग है, It's a wrong way of thinking. वन थिंग है, ओके, सो आपने जो बोला कि बहुत से ट्रॉफी नहीं जीते हैं, इससे प्रोबब्ली एक परसेप्शन बन गया है कि हम एक ऐसे फेस को भेजते हैं जो शायद अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करा तो उन पे डाल देंगे। बट व्हाट वी डिड इन 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद आपने T20 में एक यंग लड़के को कैप्टनसी दी, एक यंग टीम बनाई, हम वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद 2011, उसके बाद 2013, यू विल हैव टू गो बैक टू दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन। आप ट्रांजिशन, सो कॉल्ड ट्रांजिशन की बात करते हो, ट्रांजिशन लाते कहां हो? मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। आप आज भी एक टेस्ट प्लेयर को, एक टेस्ट वेटरन को आप कहते हो यार आप जाओ डोमेस्टिक खेलो, आपने अच्छा करा तो हम आपको वापस ले लेंगे। ट्रांजिशन कहाँ? ये ट्रांजिशन की डेफिनेशन नहीं है। सो व्हाट यू आर सेइंग, आई मतलब इन माय ओपिनियन आपको या गो अहेड। ट्रांजिशन में मतलब हम ट्रांजिशन की बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो बोला वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, बिकॉज व्हाटएवर यू डू यू हैव टू डू विद द थॉट कि आप अच्छा करोगे। अगर आपकी पहली थॉट ही नेगेटिव होगी तो ऑब्वियसली नींव ही अगर नेगेटिव में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेक्टर्स, ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स हैं, उनको भी इतना गट्सी होना जरूरी है। उस टाइम पे जब 2007 में वो टीम बनी थी तो कितना क्रिटिक्स हुआ था उस ग्रुप का, बट बाद में जब वो जीत गए तो लोग आज उसको एग्जांपल की सेट करते हैं। आर दीस सिलेक्टर्स सो गट्सी टू टेक दैट कॉल? आपको लग रहा है उनकी सिलेक्शन से कहीं पे भी अभी तक जितनी सिलेक्शंस वो करते आ रहे हैं, not just the selectors. In 2007, when India sent that young team to the 2007 T20 World Cup, that's the team you're referring to, right? It wasn't just the selectors. The credit goes, of course, it was Mr. Dilip Vengsarkar. As creme de la creme that it gets, from in terms of names who, but it doesn't get bigger than Dilip Vengsarkar. Let me put it that way. Again, selector तो बड़े थे ही, but you also have to give credit to cricketers of that time. Cricketers like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, VVS Lakshman, and Anil Kumble, big men who also were in line with Mr. Vengsarkar's thought process that we need to step back and we need to ensure. It's like today Rohit Sharma and a Virat Kohli saying that this is a young man's game, let them go, let me step back. Okay, it is a Rohit Sharma today stepping forward and saying that, you know what, I have done my share of T20, why not send a 20-year-old? Okay, that is the thought process which emerged in 2007, since you have brought up the subject. And that said, there was only one cricketer in that Indian team who was not aligned with the idea of not going. He wanted to go, but वो अगले show में बताऊँ. And that was वो एक glimpse दे देते ना viewers को. Okay, Jamie. See, 2007 T20 World Cup result has become sort of this benchmark. हम कहते हैं कि वो हो गए. Shini's rightly said कि Mr. Dilip Vengsarkar had some insight. मेरा view थोड़ा different है इसमें. I don't know because I don't have fact. But Shini and I were both in this field at that time. BCCI was the last cricketing body to acknowledge and implement T20s. ठीक है? Shini, please help me. I mean, if I'm wrong, correct me. ये लो उस रेजिम, यार ये क्या है ये, राइट? तो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सेड कि वो टीम जो भेजी गई ना, जाओ ना, क्या करोगे तुम लोग? वो टीम जीत गई तो 15 साल, अरे वो हो गया. आई एम नॉट सो कन्विंस्ड इट वाज हैंड पिक कि यार ये प्लेयर्स हैं, राइट? ये क्या है ये ड्रामा? चलो देखते. आई एम स्पीकिंग ऑफ 1 साल पहले 2006 में पहली बार T20 आई, बहुत रिलक्टेंटली, बहुत begrudgingly BCCI ने शुरू किया था, राइट? सो क्लियरली दे वर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस फॉर्मेट. अब धोनी की टीम जीत गई, रातों रात IPL आ गया, राइट? Other factor was 2007 was a terrible year for Indian cricket. One of the best one-day squads was sent और रायता ऐसा फैल गया कि भाई कुछ करना है. तो उस लिहाज से now the credit for Dilip Vengsarkar जो शीनी ने जिक्र किया था, now I'm saying I agree with that because changes had to be made. आप उस टीम को वहां नहीं भेज सकते थे, तो वो अलग सिचुएशन था, अलग हालात थे. So again, that kind of thinking has to come now. क्या वो आएगा? नहीं, let's accept it. And Jamie, actually I agree with Jamie because seniors ने back off नहीं किया था. सीनियर्स ने उसको सीरियसली लिया नहीं था. They didn't thought that it gonna, उसको वो जोकर क्रिकेट बोलते थे उस टाइम पे. बोलते थे ये क्या गेम है, ये कोई मजाक है, इसमें तो क्या गेम खराब हो जाएगी. And now that's become a major chunk, has taken a major chunk of the cricket.
बट बात वो है कि चलिए वहां पे हुआ और वो सब हुआ, मैं कहता हूँ चलिए वहां पे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद क्या हमारे फैंस और मीडिया भी रेडी होगा अगर आज हम वर्ल्ड कप की टीम से रोहित और विराट को बाहर निकाल दें और एक नई टीम को डाल दें? True. क्या हमारे फैंस, Basically, मीडिया it's about the stature of the game, of the format. I Fans Probably. भी know नहीं होंगे। it's high time. It's high time. There are two ways to look at it. अगर आप फैन के हिसाब से, अगर आप फैन के हिसाब से तो पहली बात हर चीज कर नहीं सकते, राइट? तो फैन इज सेकेंडरी, यू कांट थिंक लाइक अ फैन, so यहाँ पे your effort is to put your best foot forward, not kind of pander to what fandom is demanding, right? And that's where, so when you talk about men of certain stature coming into the ecosystem and making a difference, what do these men of stature bring to the table? Obviously, what they first and foremost, what they bring to the table is not pandering to big noise, loud noises, doing something that they genuinely believe is right. That's where experience comes in, that's where the right mindset comes in. So now that aside, again, I do understand at certain point in time that superstar culture also matters, from a larger big picture perspective. It is extremely important because, today when you go, I mean, Cricket Next just broke a story 1 hour back that BCCI has found a replacement for Byju's on the jersey. Dream 11 has come on board, and it's a brilliant story by Cricket Next. The point being, you need a Virat Kohli and a Rohit Sharma and a Shubman Gill to be wearing those jerseys, right? That's when the sponsor is going to come and put in that top dollar. Qatar Air decided to go and put in money at Royal Challengers Bangalore because they know what Virat Kohli as a brand brings to the table. That is where the money is going. I can tell you another thing. In 2014, when Star India, I've said this on the show before, when Star India decided to renew the contract with BCCI as the broadcaster, they saw in Virat Kohli the superstar that was in the making. And, Star's entire campaign from a broadcast standpoint was designed around Virat, right? And that continued for the longest time until actually Virat stepped down as captain across all formats. That's extremely necessary. But you don't bring a star to build a team. You build a team and then let a Get a star be star. born out Get of a it. star. Yeah. So kind of there's a difference there. Yeah. Yep. Yeah. Yeah. But Chaitanya, okay, we've been talking about senior players. We have been talking about T20 cricket without senior players and everything. If you play a T20 game, parallel to a big tournament जहाँ आपके senior players दूसरी जगह पे busy हैं, तब तो आप शिखर धवन को ले जाओगे, तब तो आप यहाँ तो फिर वहां से भी बैठा दो ना, वहां से भी बैठा दो कि नहीं यार थैंक यू वेरी मच, आपका कोई एक आधा हम टूर्नामेंट खिलाएंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, यहाँ पे यंगस्टर्स ही खेलेंगे. I'm just surprised and a bit disappointed with the kind of treatment going on with that kind of a player. इसने आपको ऐसे टूर्नामेंट्स में अच्छा करके दिया है. He has been their kind of a makeshift captain जब आपको जरूरत थी. आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको लाते हो, कन्वीनियंस के हिसाब से निकालते हो. दैट इज व्हाट आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट. सी कन्वीनियंस की बात अगर आप कर रहे हैं तो आई थिंक ये तो एक अच्छी तरीके से बीसीसीआई उनको एक मौका दोबारा दे रही है, बिकॉज अगर वो अपने प्राइम में नहीं थे और उसके बाद उनका कोई ऑप्शन ढूंढ लिया और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है, तो आई थिंक बीसीसीआई just giving me more respect कि as a senior we are still considering you for this B teams. Otherwise अगर वहां से भी हटा देंगे तो मतलब it will be like कि ठीक है यार आपका खत्म हो गया, we are done with you. So but I think बात वही बार बार आ रही है कि as a BCCI और एज ए सिलेक्टर यही होता है कि यार मैं एक टीम बना रहा हूँ, इस टीम को मैं कैसे जिताऊं, क्वेश्चन सबसे बड़ा यही होता है दिमाग के अंदर. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन के कारण, बिकॉज हम काफी टाइम से जीत नहीं रहे, अभी सीनियर सिलेक्टर के साथ प्रॉब्लम हुआ तो चेयरमैन सिलेक्टर के साथ प्रॉब्लम हुआ, तो वो सारी चीजें ना दिमाग में कहीं ना कहीं चलती हैं. तो आप ऐसी टीम नहीं करना चाहते जहां पे लोग आपके ऊपर फिर से फिंगर्स उठाएं और बोलें. और जैसे बात करें हम एशिया गेम्स के अंदर अफगानिस्तान की टीम अच्छी होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अफगानिस्तान हैज गॉट गुड टैलेंट. उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है. आई हैव सीन द प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स दे आर प्लेइंग. I think they have more than 15-16 bowlers, fast bowlers who can bowl plus 140 plus at will.
आई हैव सीन देम प्लेइंग इन डिफरेंट लीग्स कंटिन्यूअसली या वहां पे एक नॉर्मल सा प्लेयर आ रहा है और वो 140 145 नॉर्मल फेंक रहा है और बॉल मूव करता है। मजे की बात ये है कि बॉल स्विंग भी करता है एंड दे कैन बैट आल्सो एंड दे हैव मेनी मिस्ट्री स्पिनर्स कमिंग अप। सो आई थिंक एशिया गेम्स के अंदर जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा, जो ब्लैक एज ए डेंजरस टीम जो आएगी, ब्लैक डॉग्स जो होंगे, वो होंगे मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम। So I think that will give a good challenge to Indian team. We cannot take it lightly because पाकिस्तान की भी टीम होगी वहां पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो सकता है अफगानिस्तान के साथ लेके। टीम डिस्कशन Also, बात करेंगे या जेमी। ऑल्सो वी डोंट नो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी डोंट नो कि अगर चलो टीम ना जाए, बाकी टीम तो जाएंगे ना, वहां की कंडीशंस क्या है, राइट? इन चाइना देर स्टिल एट द लोकल क्लब लेवल वो मैटिंग पे खेलते हैं ना। अब ये तो T20 है, अब मैटिंग पे तो हरगिज नहीं खेलोगे। तो हु इज बिल्डिंग द पिचेस? ऑफ कोर्स आईसीसी विल हैव अ से बिकॉज इट्स ऑफिशियल, राइट? तो कंडीशंस नो वन हैज अ क्लू, क्या बाउंस होगा, सीम होगा, नो विकेट्स, वी डोंट रियली नो। तो उस लिहाज से एक तगड़ी टीम आपको भेजनी पड़ेगी, और तगड़ी टीम के बाद India is heads and shoulder above the rest. Afghanistan, yes, we've seen the rise. I think we talked about it a few days ago. The rise of Afghanistan's fast bowling is what Chaitanya is talking about. अब ये वो टीम है जो सिर्फ spinner, इनके fast bowlers आ रहे हैं, right? I think before Shini was, when you were cut off, Soumya, Shini was saying कि और कौन सी टीम है जो जिनका bench strength अच्छा है, वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और वो एशियन टीम्स नहीं है। पाकिस्तान की मेन टीम क्या है वो नहीं पता, सेकंड टीम तो भूल जाओ, श्रीलंका स्ट्रगलिंग, बांग्लादेश स्ट्रगलिंग। सो इट्स एक्चुअली इंडिया हेड एंड शोल्डर्स, और फिर लाइक चैतन्य सेइंग देन यू गेट अफगानिस्तान। तो जस्ट घुमा फिरा के मैं वही कह रहा हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर टीम जाएगी तो मेडल तो आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं शो एंड करने से पहले एक चीज बोलूंगा, ये कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात भी, क्योंकि अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप हार गए और एशियन गेम्स में मेडल आ गया तो क्वेश्चन फिर से उठेगा कि भैया कप्तान बना के क्यों नहीं भेजा वर्ल्ड कप में शिखर धवन को। तो ये क्वेश्चन भी उठने वाला है। वेल, इंटरेस्टिंग होगा कि टीम क्या जाती है, या कैप्टन बन के जाते हैं, या टीम इनफैक्ट भेजते भी है या नहीं भेजते, वो 7 जुलाई को पता लग जाएगा। वेल, या शिनी, यू वर सेइंग समथिंग? नहीं, हम 7 को रात को शाम को शो करेंगे जब ये न्यूज़ बाहर आएगी कि टीम नहीं जा रही है। नहीं, बट आई वांट टू एग्री विद श्रीनी। अगर सीरियसली अगर क्रिकेट की बेनिफिट के लिए देखना है, ऐसे मतलब अब बाकी सब तो हमें यंगस्टर ही भेजना चाहिए और यंगस्टर को ही कैप्टन बनाना चाहिए, बिकॉज यंगस्टर आप यहाँ से एक ना स्टेपिंग स्टोन रख रहे हो, उसको बता रहे हो यार कि कैसी कैसी डिफिकल्टीज आती हैं व्हेन यू हैव टू लीड अ टीम, और वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जो कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट टाइप होता है जहाँ पे आपको मेडल या ट्रॉफी के लिए जाना पड़ता है, नॉट अ बायलैटरल सीरीज। तो वो बड़ा फर्क पड़ता है जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं और एक टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ पे आपको एक ट्रॉफी या एक मेडल के लिए जाना होता है, तो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। प्रेशर गेम इज डिफरेंट, वहाँ पे प्रेशर बहुत अलग होता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेपिंग स्टोन होगा अगर हम यंगस्टर्स के साथ जाएंगे, जबकि वो मुझे एक तरफ से मुश्किल लगता है कि ऐसी थॉट प्रोसेस होगी। बट अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ अगर वो जाते हैं, हमारे सिलेक्टर्स अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मूव होगा। और दूसरी बात, जैसे जेमी ने बोला था कि शिखर की कैप्टनसी, यू हैव टू लुक इट नॉट ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट, यू आल्सो हैव टू लुक इट एट द डोमेस्टिक लेवल, आईपीएल लेवल। वहां पे किस तरह की कप्तानी करी है शिखर ने? दिल्ली के लिए भी कप्तानी करी है, बट दिल्ली भी क्वालिफाई नहीं हुई है उस साल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको, मतलब अगर आप कुछ डिसाइड करो तो यू हैव टू गो एंड स्कैन द थिंग्स, आपको उसको पूरा देखना चाहिए, डीप डाउन जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो श्रीनी और जेमी कह रहे हैं उसके ऊपर, मतलब उस तरीके से होना चाहिए। बट एज ए बीसीसीआई और एज ए सिलेक्टर, जो मैंने देखा है माइंडसेट हो जाता है हमारा, जब मैंने बीसीसीआई में काम किया या मैंने एज ए सिलेक्टर काम किया दिल्ली के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि यार एक अगर ट्रॉफियां नहीं जीत रही या रिजल्ट नहीं आ रहा, तो किसी तरीके से ऐसी टीम बनाए कि हम यहाँ से रिजल्ट ले। यू आर राइट ऑन दैट। वो प्रेशर, जो जॉब प्रेशर है, वो तो जो बैठा है कुर्सी में उसी को समझेगा, जो कुर्सी पे नहीं बैठा है उसको नहीं समझेगा। ऑन दैट फ्रंट आई कंप्लीटली एग्री। वेल, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली चैटिंग विद यू। दोबारा आएंगे एज श्रीनी सेड 7 जुलाई को डिसीजन के बाद कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या टीम जाती है। थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म,
क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।